علیکم. ہم سسٹرز کیفے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں اسلام چینل اردو پر، اور جہاں پر بھی آپ ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پروڈکٹیو کام آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو. بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں ہمارے اپنے روزمرہ روٹین کے اندر. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ضروری ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہماری پرائیورٹی ہوتے ہیں یا ہمارے ورک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان سارے کاموں کے درمیان میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں مل پاتا ہمیں آبزرو کرنے کا، اپنے آپ کو، اپنے بارے میں جاننے کا، اپنے اوپر سوچنے کا، اس بات پہ غور کرنے کا کہ ہم اندر سے کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے اندر کون سے ایموشنز موجود ہیں، اور جو ہماری سوچیں ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے جذبات کے اندر ڈھل رہی ہیں اور ہمیں کیسا انسان بنا رہی ہیں، ہمارے رویے کیسے ہیں، ہماری عادات کیا ہیں. مصروف چلتی بھاگتی دوڑتی زندگی کے اندر کچھ وقت خود اپنے آپ کو دینا اور اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہاں پر جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کوئی ٹاپک، اپنی نالج شیئر کرتے ہیں یا اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کی امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو سننے والے ہیں، ہمیں جو دیکھنے والے ہیں، وہ تھوڑا بہت سوچتے ضرور ہوں گے اور اپنی لائف میں تھوڑا سا وقت اس چیز کے لیے ضرور رکھتے ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی پر، اپنے معاملات کے اوپر، اپنے ایشوز کے اوپر تھوڑا سا وقت دے کے، تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سوچنا شروع کریں کہ کوئی چیز جو ہماری زندگی کے اندر ہو رہی ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، جو ایشوز ہو رہے ہیں، ان کا ریزن کیا ہے. ان کا ریزن ہمیشہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ان کا ریزن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز اچانک سے ہمارے سامنے آ گئی اور ہمارے لیے مشکل بن گئی، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں بہت سارے مسائل. ہم کس طرح سے، کس نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس نظر سے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس شو کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ یقیناً بہت کچھ سیکھتے ہوں گے. آج بھی ایسا ہی ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور جس کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں کال کریں، ہم سے شیئر کریں آپ کا کیا اوپینین ہے. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کریں، اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو اپنا اوپینین شیئر کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سوچ کو درست کرنے والے کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن پر ضرورت ہے بات کرنے کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پر مزید بات ہونی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں اور ان پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم آپ کے منتظر رہتے ہیں. اپنے شو کے اندر کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہوگا آپ کے سامنے. اور ہمارے ساتھ آج ہماری گیسٹ ہیں، شامل ہوئی ہیں ہمارے پروگرام میں امریکہ سے، اور ان کا تعلق بھی اسی طرح کی فیلڈ سے ہے جس میں سوچ کو درست کرنے کا کام کیا جاتا ہے، جن پہ ایموشنز کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے. آپ پہچان گئے ہوں گے ہمارے ساتھ شامل ہیں ارم بنت صفیہ، جو ہم سے شیئر کریں گی اپنی سوچ. میں شیئر کروں گی اپنی سوچ، اور ہم سب لوگ مل کر یہاں پر یہ بات کریں گے کہ ایموشنل ایڈکشن کیا ہے. ایموشنز کے اوپر بات کی جائے گی. بہت سارے ایموشنز، بہت سارے جذبات جن کو ہم نے ٹائٹلز دیے ہوئے ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں غصہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ سیڈنس، اداسی کیا ہے، ہم خوف جانتے ہیں. اسی طرح سے انگزائٹی کا ایموشن، یہ سارے بہت کامن ایموشنز ہیں، بہت کامن سے جانے پہچانے سے ہمارے جذبات ہیں، جن کو ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں جن کے نام لیتے بھی رہتے ہیں، اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہم انگزائٹی فیل کر رہے ہیں، ہم غصہ محسوس کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں بہت زیادہ. لیکن ان کی کافی گہرائی بنا میں کے جا پی کر لو. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایموشنز ہیں کیا، بنتے کیسے ہیں ایموشنز، کہاں سے آ جاتے ہیں ایموشنز، اور ان ایموشنز کی بیس کے اوپر پھر ہمارے جو رویے بن جاتے ہیں، ہم جس طریقے سے اپنا مزاج بنا لیتے ہیں، جو ہمارے بیہیویئر پیٹرنز بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے چھپے ہوئے یہ جو ایموشنز ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے. آج ان کے اوپر بات کریں گے. آسان سی باتیں، وہ ساری باتیں کہ جو آپ کو یقیناً سمجھ بھی آئیں گی، ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم جب نارملی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، تو ان سب میں پیچھے چھپے ہوئے جو ہمارے جذبات ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ جو بھی چیز زندگی میں اتنی امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے اوپر ایک اثر ڈالتی ہے، جس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ہر چیز پر زندگی سے تعلق رکھنے والی، تو اس پر بات بھی کی جائے. یہاں پر ہم نے یہی سوچا کہ ایموشنل ایڈکشن پہ بات کریں کہ کیا ہے ایموشنل ایڈکشن. اس کے لیے میں چلوں گی ارم بنت صفیہ کی طرف. السلام علیکم ارم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ایمن، اتنا اچھا آپ نے
बेस बना दी है इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इरम, बहुत सारे इमो सवाल हैं मेरे जहन में, और जी। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपनी जो सवालात की लिस्ट है उसमें कौन सा सवाल पहले पूछूं। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि किताबी बातें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, और बातें ये होनी चाहिए कि रोज़मर्रा के मसाइल क्या हैं। जैसे आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों की तरबियत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्रेशर्स अब हैं वो पहले नहीं थे, यानी वो बातें जो हमें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन वो बातें जो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या किताबी बातें हैं, इनको डिस्कस करना या सोच के ऊपर बात करना, सोच कैसे बनती है, जज़्बात कैसे बनते हैं, इनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा आपको महसूस होता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरा मेरा शुबा जो है, मेरा ताल्लुक जो है वो इन्हीं चीज़ों को डील करना है, इमोशंस को डील करना है। मेरा एक कोर्स भी है इमोशनल हीलिंग पे। अक्सर मैं इमोशनल हीलिंग आई थिंक मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। आपने आपकी बात में ही जवाब था। एक तो आई एम ऑलवेज़ अ फैन ऑफ हाउ यू से थिंग्स, हाउ यू राइट थिंग्स, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आपने कहा जो हमारे बाहर के प्रेशर्स हैं या हमारे जो बच्चों की तरबियत के प्रेशर्स हैं, हमें उनसे डील करना होता है। प्रेशर का मतलब है कि हम कुछ महसूस कर रहे हैं। हुँ, महसूस जो कर रहे हैं, फिर वो हमसे आगे हम उसको कन्वे कैसे करते हैं। हुँ, प्रेशर कुकर की तरह भी अगर आप इमोशन को करते जाओ, स्टफ़ करते जाओ तो कभी तो वो फटता है, राइट? तो हुँ, ये जितने सोशल प्रेशर्स या स्पिरिचुअल अनहीलिंग जो हुई हुई है और या हमारे मुआशरे में जो भी मसाइल चल रहे हैं, हम उसको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? हमारे आपसी ताल्लुकात में हम बात क्या कर रहे हैं? हुँ, ये किताबी बातें हरगिज़ नहीं है, ये रोज़मर्रा की हुँ। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो हर कोई महसूस करता है। अगर बात नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि कोई महसूस क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए इस बारे में या क्या समझना चाहिए इस बारे बिल में? बिल्कुल। मेरा असल में बात ये है कि जिस तरह से ब्रॉट अप होता है इंसान का, तो मुझे लगता है कि हमारा जिस तरह हम बड़े हुए और हमने ये देखा कि अमूमन बात की जाती है उन चीज़ों पर कि जो आपको सामने कोई मसला आपके आके खड़ा हो गया, ठीक है? और अब आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद परेशान हो रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि ख़वातीन का सबसे जो फ़ेवरेट टॉपिक होता है, मेरा ख़्याल है आजकल मर्दों का भी होगा, कि अपना वेट कॉन्शियस लोग बहुत होने लगे हैं, वेट कैसे कम करना है। तो बस यानी वो बातें जो अब आपके लिए एक मसला बनकर खड़ी हो गई हैं, आप उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब बड़े होते गए ना, तो हमें इतना आदत नहीं पड़ी इस चीज़ की कि हम अपनी सोच के ऊपर बात करें कि सोच हमारी कैसे बन रही है। और ये जो हमारे जज़्बात हैं, ये जज़्बात जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बस ये हैं तो हैं, लेकिन ये क्यों हैं और ये कहाँ से बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हमें आदत भी नहीं पड़ी इनके ऊपर बात करने की, और चूँकि हमें ऐसे लोग नहीं मिलते कि जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें, तो फिर हमें ये बातें बोरिंग लगने लगती हैं, हमें इनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। इवन बहुत पावरफुल बात की आपने। आपने कहा हमें आदत नहीं ये बात करने की। मैं समझती हूँ हमें समझ नहीं कि बात सुननी कैसे है, हम बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी से पूछते हैं, जब आप मुझसे पूछते हो, इरम आप कैसे हो? और मेरी और आपकी बात अक्सर होती रहती है और मुझे मुझे ऑनलाइन ये बताते हुए मतलब अच्छा ही लग रहा है कि एक दफ़ा एमन ने मुझसे पूछा आप कैसे हो? तो मेरे मेरे दिमाग पे जो सवार थी उस वक़्त बात, वो मैंने सारी कर दी। हालाँकि हमारी कोई इतनी गहरी दोस्ती उस पॉइंट पे नहीं थी कि मैं हुँ, लेकिन आपने इतना खूबसूरत तरीके से वो सारी चीज़ सुनी, वैलिडेट की, समझी और फिर बात की। यूजुअली हम क्या करते हैं अगर हम किसी से कह रहे हैं कैसे हो? तो हमारा हमारा जो होता है, हमारे ज़हन में कि बोलेगा ठीक है और फिर ठीक है और फिर बात खत्म हो जाएगी और फिर आगे चले जाएँगे। लेकिन रुक के पूछना, जानना और एक्सप्रेस हुँ, कर पाना, हाँ, तो हमें एक्सप्रेस करने में तो प्रॉब्लम है ही है, हुँ। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस कर दे तो फिर उसको समझने में और उसको रिएक्ट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बिल्कुल। इरम, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, और हमारे जो लोग देखने वाले हैं वो भी शायद इसको समझ सकें, कि कल जैसे मेरी मुलाकात हुई अपनी एक दोस्त से, और हम यही बात कर रहे थे बैठ के कि आजकल के ज़माने में दोस्त तो बहुत ज़्यादा हैं। सबके सोशल जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
آپ ملتے ہیں لوگوں سے، آپ کی سوشلائزیشن بہت ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ ملنا کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنا جو اندر کی جو بات ہے وہ کر سکیں، آپ سوچ کیسے رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کہنا کسی سے کہ آپ کیسے ہوں، کوئی جواب دے کے ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن کل جو ہم نے ملاقات کی تو ہمیں یہ پوچھنے کی اور یہ ایک فارمل سا جواب نہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا اپنی سوچ کو، ہم آج کل کن چیزوں کے اوپر ایموشنل نیڈز ہماری کیا ہیں اور ان ایموشنل نیڈز کے پورا نہ ہونے سے کیا نقصانات ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی صحبت بھی بہت ضروری ہے اور ہاں ان چیزوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر بات کریں کہ جن کے اوپر بات جی کرنے کا کوئی ٹرینڈ ہی نہیں نظر آتا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں سمجھتی تھی، یہ بڑا ریسنٹ میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، میں سمجھتی تھی کہ جو میرا پرانا سرکل آف پیپل ہے جو مجھے بڑا انٹیمیٹلی جانتے ہیں، رائٹ، فیملی کے لوگ آپ کو سب سے زیادہ قریب جانتے ہیں، آپ کے میکے والے ہو گئے، سسرال والے ہو گئے، کہ یہ جو میرا پورا گروتھ کا پروسیس چل رہا ہے ایز اے کوچ، تو جب میں ان میں واپس جاتی ہوں تو آئی ایم دا سیم پرسن بٹ آئی ایم ناٹ، میں نے ابھی ریسنٹلی آبزرو کیا کہ آئی ایم ناٹ دا سیم پرسن، میرا دل کرتا ہے باتوں کو مزید ایکسپریس کرنے کا، زیادہ ڈیپلی ریفلیکٹ کرنے کا، اور جو سامنے والا اگر اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ویسی نہیں ہوئی تو ادھر دے آر کنفیوزڈ اور ادھر دے آر کوائٹ، اور اگر کوئی کوائٹ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے ان کو لگے گا کہ یہ بھائی بیبی پھر یہاں پہ لیکچر شروع ہو گیا اس کا، تو پھر میں چپ ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ریسیو نہیں کر رہی ہوں جو میں ریسیو کرنا چاہ رہی ہوں، سو اٹ از ڈیفیکلٹ، اٹ از ڈیفیکلٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ جو ڈیپ ریفلیکشن ہے نا آپ کے ایموشنز کا، یہ بھی آپ نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے کہ آپ ہر ایک سے ڈسکس کرو، اور آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا پرسن جو ہے وہ اس کی ایموشنلی اینڈ مینٹلی اس کی وہ گروتھ نہ ہو، اس طرح کی میچورٹی نہ ہو کہ آپ اس سے ڈسکس کریں اور اس سے سمجھ بھی آئے کہ آپ کیا بات کریں۔ تو ناظرین یہ جو باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ہم اس لیے یہ بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہمیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو عموماً ہم ان مسائل کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ شادیاں کیوں نہیں ہو رہی، بچے بگڑ رہے ہیں، اور آج کل کے جو آج کل کا جو ایک روٹین ہے سب کا، اس میں ٹائم میں برکت نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ہے، یہ سب چیزیں ارم نے جیسے کہا کہ یہ سارے مسائل ہیں، لیکن ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری سوچ ہے نا وہ ان سب باتوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں وہ کس طرح سے ہمارے دماغ کے اندر آ رہے ہیں، اور چیزوں کو، معاملات کو، مسائل کو دیکھنے کا ہمارا پیٹرن کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ جب ہماری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ واقعی اس پر سوچنے کی، رک کر ٹھہرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری باتوں کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، ہمارے نمبر ہمارے اسکرین پر موجود ہے، ارم سے کوئی سوال کرنا چاہیں، مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اچھا ارم، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں جن پر بڑی بات کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے یہاں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے نا کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم بڑی جذباتی ہو، بہت ہی جذباتی ہو، فوراً ہی جو ہے وہ ایک دم ریاکٹ کر دیتی ہو، تو ہاں اس سے تو ایک نیگیٹو سا ہمیں تصور آتا ہے کہ جذباتی ہونا غلط چیز ہے، اور دوسری طرف آج کل یہ بات کی جا رہی ہے کہ اپنے ایموشنز جو ہیں ان کو ایکنالج کرنا، تو آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ ایموشنز ہیں کیا، کیا ہے، پازیٹیو ہی ہیں یا نیگیٹو ہی ہوتے ہیں، اور ان کو ایکنالج کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سارے ابھی سوال ہو گئے۔ نہیں، اچھے سوال ہیں، اچھے سوال ہیں، ایکچولی ہمیں سکھایا گیا کہ ایموشن پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتے ہیں، حالانکہ اب سائنس اور ریسرچرز اور سائیکالوجسٹ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ ایموشنز نہ پازیٹیو ہوتے ہیں نہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ایموشنز ایک رینج آف کیا کہتے ہیں، آپ کی ایکشنز ری ایکشنز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، رائٹ، اینڈ ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن اینڈ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا امپلس کنٹرول کتنا ہے، آپ کا اسٹریس کنٹرول کیا ہے، آپ کس طرح سے ایکٹ اور ری ایکٹ کر رہے ہیں سرٹن سچویشنز کو، اور ایموشنز جیسے ہم بریدنگ ایکسرسائزز پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، جب اسٹریس ہے تو برید ان برید آؤٹ، اوکے، فوکس کرو، اور ان ساری چیزوں پہ جیسے جیسے ہم دھیان دیتے جا رہے ہیں ایموشنز پہ بھی اسی طرح سے اب دھیان دینا سکھا رہے ہیں، بریدنگ کے ساتھ ہی ایکچولی ایموشنز کو کنٹرول کرنا سکھا رہے ہیں، یا ایموشنز کو بہتر طریقے سے مینج، کنٹرول از ناٹ اے ویری پازیٹیو ورڈ، نیگیٹو کانوٹیشن آ جاتی ہے کہ مطلب کوئی چیز آپ پہ سے باہر ہو رہی ہے اور جی اس کو پکڑ کے تھام کے رکھنا ہے، نہیں، اس کو مینج کرنا، بیکاز ہمارے دین میں ایموشنز کو پورٹرے کرنا بھی سننا کا طریقہ ہے، ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ جب
वो अफ़सुर्दा हुए या रोए और सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मतलब दिल दुखता है। हुँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है रोने का या हुँ, जब जब भी आप सीरा पूरी देखते जाओ तो गैरा जब गैरा पे कोई बात आई तो गुस्सा भी आया, हुँ, जब तकलीफ हुई तो रोना भी आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद माँगते हुए, यानी ऑल ऑफ दीज़ इमोशंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में पोर्ट्रे किया है कि अंबिया कराम की कहानियों में कि इमोशंस आर अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमारा एक हिस्सा बनाया। ये तो एक बात हो गई। आपका दूसरा क्वेश्चन मुझे भूल गया। बस मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इमोशंस जो है ना, इनको अमूमन नेगेटिव या पॉज़िटिव समझा जाता है और हम कैटेगरीज़ बना लेते हैं कि ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन आपने कहा कि एक रेंज ऑफ इमोशंस है, ना पॉज़िटिव है, ना नेगेटिव है, और उनको उसी हाँ। तरह लेना चाहिए जिस तरह वो हैं। हाँ, बिल्कुल और मैनेज करने के फिर टूल्स होते हैं। जब आपने मुझे दिया ना इमोशनल एडिक्शन तो हालाँकि हम अभी तक आई एम बेसिकली जंपिंग द गन लेकिन जब इंसान अफ़सुर्दा होता है या दिल किसी का टूटा हो, इन तमाम जितने फ़िल्मी गाने हैं, जो सैड लव सॉन्ग्स हैं, ठीक है? वो क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली क्यों लूप पे चल रहे होते हैं ये गाने जब किसी का दिल टूटा हो तो? वो एक इमोशनल एडिक्शन है ना कि सैडनेस और एंग्ज़ायटी और लॉस जब इंसान महसूस कर रहा है, तो हुँ, फिर एक हद तक तो उस इमोशन में रहना ठीक है, लेकिन जब वो बियॉन्ड उस हद के पार कर जाए, अब जी। यहाँ पे हम ये रुक के बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हद फिर कौन डिसाइड करता है और किस तरह से होती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे देखिए ना, अपने जो हमारी सोचें जो आ रही हैं दिमाग के अंदर, और हर चीज़ को, हर मंज़र को हम हमारे सामने जो नज़रों के है, उसको देख के दिमाग में कोई सोच आ रही है, तो सोच से इंसान खुद को अलहदा नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। सोच आ रही है, एक सोच आती है, एक सोच जाती है। लेकिन जब उन सोचों को हम कोई मानी देने लगते हैं या हर सोच को हम सही समझने लगते हैं, तो फिर उससे हमारा कोई इमोशन बन जाता है ना। और फिर उसके बाद मैनेजिंग इमोशंस की यहाँ पर बात होगी। इसी तरह से मैं ये सोचती हूँ इरम के, यानी कोई भी इमोशन है हमारा, उस ना वो आपने जैसे कहा कि ना पॉज़िटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन अगर आप उसके आदी हो जाते हैं ना, उसके ऊपर आप डिपेंड करने लगते हैं, आपकी हुँ, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। या अमूमन जैसे हमने आज टॉपिक रखा है यहाँ पे एडिक्शन का, तो लोगों की नज़र अमूमन या तसव्वुर यही होता है कि एडिक्शन से मुराद ये कि कोई नशा आवर अद्वियात हैं, कोई अल्कोहल है या ड्रग्स हैं या कोई भी हुँ, हुँ, सब्सटेंस यूज़ है। लेकिन किसी इमोशन के ऊपर आप इतने डिपेंडेंट हो जाएँ कि आप उससे जो है वो, यानी आपको पता ही ना चले, गुस्सा ही आपको आ रहा है और आपको लगता है कि हर चीज़ का इलाज ही गुस्सा है। या आप अपने अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें, तो आपको पूरा दिन में महसूस होता है कि आप हर हर वक़्त शक में मुब्तला रहते हैं, हर वक़्त खौफ़ बिल्कुल। में मुब्तला रहते हैं। तो ये इस तरफ मैं आना चाह रही हूँ कि हम कैसे समझ सकते हैं फिर इमोशनल एडिक्शन को? अच्छा, ये अगेन वापस ब्रेन साइंस पे चला जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम पे चला जाता है कि जब हुँ, आपके नर्वस सिस्टम को किसी एक ट्रिगर से डोपामाइन मिल रहा होता है, यानी कि जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो मिल रहे होते हैं या सैटिस्फैक्शन जो होती है वो सिक्रीट हो रही होती है, तो आपको लगता है कि वहीं पे रहना है या उसी लूप में फिर हम स्टक हो जाते हैं। इसी वजह हुँ, से हमें स्क्रीन एडिक्शंस भी होती हैं, खाने-पीने की एडिक्शंस होती हैं, क्रेविंग्स होती हैं हमें, राइट? अच्छा, इमोशंस के साथ खाने की क्रेविंग्स भी चेंज होती हैं। कि जी। बाज़ औक़ात अगर आप एक इमोशन में स्टक है तो आप एक पर्टिकुलर तरह का खाना खाना पसंद कर रहे हैं, जो कि फिर आपकी वेट में, ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में आपको मज़ीद तकलीफ़ पहुँचा रहा है। तो इमोशनल एडिक्शन अगेन इज़ अ ब्रेन न्यूरॉन फीलिंग थिंग, राइट? हुँ, और एक केमिकल चेंज होता है, जो आपके दिमाग में होता है और फिर आप वो एक पाथवे बन जाता है आपके न्यूरॉन्स का। हुँ, जैसे कि आप समझ लो कि फिर वो एक स्ट्रीम का पाथवे बन गया, वो उसी तरह से फ्लो होता जा रहा है। क्या हम हुँ, उसको ब्रेक कर सकते हैं? क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हुँ। ये बात इम्पोर्टेंट है कि इरम अमूमन ना, जैसी पर्सनैलिटी होती है ना हमारी, हम बहुत मुश्किल महसूस करते हैं कि हम उसको चेंज करें। और ये होता है कि बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं कि हमें बोलना अच्छे तरीके से आ जाए, और जिस तरह से हम ड्रेसिंग करते हैं वो हमारी बेहतर हो जाए, और भी बहुत सारी जो चीज़ें ज़ाहिरी हैं उनके ऊपर हम मेहनत करते हैं। लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी, अंदरूनी शख्सियत हमारी है, जिस तरह हमारे जज़्बात, हमारे ख़यालात हैं, उनके ऊपर मेहनत करना, हमें शायद हमारा तसव्वुर नहीं है कि उनके ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए, या हमारे जिस तरह के जज़्बात हैं, जिस तरह के हम हैं और अंदर से जैसे हैं, यानी ऊपर से तो हम प्रेज़ेंटेबल बन सकते हैं ना, हम जैसा चाहें अपने आप को वैसा दिखा सकते हैं। ख़ुसूसन आजकल के दौर में मैं कहूँगी कि जब हमारे ताल्लुकात ही इतने डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं,
ऐसे रابते हैं कि जिसमें हम फिज़िकली एक-दूसरे से नहीं मिल रहे, तो जो चाहे वो दूसरे को अपना आप वैसा दिखा सकता है जैसा वो चाहे। लेकिन हम अंदर से क्या हैं और अंदर हमारे जो ख़यालात और जज़्बात हैं, वो किस तरह से गर्दिश करें, इनके ऊपर मेहनत करनी क्यों ज़रूरी है? um, अगेन सारी चीज़ें फिर वही बात है, इवन जो आप और मैं हमेशा से जानते हैं, जब अपने क्लाइंट से करते भी हैं एज़ कोचेज़, कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बचपन। हुँ, कि जिस माहौल में, जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, जो हमारे उस वक़्त के फ़ियर्स थे या हमारी एंग्ज़ायटीज़ थी, उनको एड्रेस किया गया, नहीं किया गया। और उसके साथ ही, क्योंकि आप और मैं जानते हो कि हम ख़वातीन का, स्पेसिफ़िक हम ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला लिमिटिंग बिलीफ़ होता है। हम ये हुँ, नहीं कर सकते हैं। एंड फॉर सम रीज़न फॉर यियर्स एंड यियर्स हम उस इमोशनल एडिक्शन में रहते हैं कि अपने ऊपर सेल्फ पिटी करना, और आपने भी ये कई दफ़ा बात लिखी भी है, बोली भी है कि विक्टिम समझना अपने आप को। व्हाट हुँ, इज़ दैट? वो स्टेम एंग्जायटी से हो रहा है, व्हिच इज़ एन इमोशनल एडिक्शन लूप। और फिर उसके बाद लोग जब अपने आप को विक्टिम समझना शुरू होते हैं, तो फिर उन्हीं 4 लोगों के बारे में, 5 लोगों के बारे में साल हाँ साल बुराइयाँ करते रहना, बैठना, पता भी है कि ग़ीबत जो है वो हराम है, पता भी है कि नहीं करनी चाहिए, पता भी है कि फ़ॉरगिव कर देना चाहिए, बट यू जस्ट कांट स्टॉप फ्रॉम डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। हुँ, हैबिचुअल हो जाता है। उस वक़्त हो क्या रहा होता है? उस वक़्त ये जो हमारा बिलीफ है कि हाँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मैं विक्टिम हूँ, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, या मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकती हूँ, या स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकती हूँ, या अपनी अपने आप को एजुकेट कैसे कर सकती हूँ, व्हिच इज़ ब्रेकिंग दैट एडिक्शन पैटर्न। हम उस साइकिल में रहते हैं और उस कंपनी में रहते हैं, और पसंद करते हैं कि हम कुछ ना करें सिवाय बात करने के, जो कि हमारी हमारी जिस्म पे, हमारी ज़हन पे, हमारे इमोशंस पे मज़ीद भारी होती चली जाती है। ये जो हुँ, क्रोनिक इलनेसेस होती हैं या दर्दें होती हैं, they are because of emotional addictions. हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इरम, मैं आपसे थोड़ा और खुलकर बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, हम तब्दील होना चाहते हैं। हाँ, बहुत से लोग होते हैं थेरेपी के सेशंस भी लेते हैं, कोचिंग सेशंस भी लेते हैं, वैसे ही वो एक-दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशंस कर रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सोच को दुरुस्त करने के लिए अम, क्या करना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, अच्छा हम वॉक करने चले जाएँ, हम किसी फ्रेंड के साथ जाकर थोड़ा-सा सोशलाइज़ कर लें, हम कोई टीवी का प्रोग्राम देख लें, तो वक़्ती तौर पर हमें रिलीफ़ मिल जाएगा, वक़्ती तौर पर हम अपने आप को बेहतर महसूस करने लगेंगे। लेकिन जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि अपनी सोच और अपने जज़्बात की अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत कम है। ज़ाहिरी चीज़ें हाँ, तो बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन चूँकि अपने ऊपर मेहनत नहीं की जा रही, अपने आप को जाने बगैर हम सिर्फ़ कुछ ऐसी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं जिनसे हो सकता है हमें कुछ रिलीफ़ मिल जाए, तो वो रिलीफ़ वक़्ती तौर पर तो मिल जाता है, लेकिन तब्दीली नहीं आती। आप क्या कहती हैं इस बिल्कुल। पर? मैं इस पे ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, मतलब दिस इज़ ट्रू। अब उस चीज़ को जो आपने बताई कि लोग करना चाह रहे होते हैं, पर कर नहीं पा रहे होते हैं, या देख नहीं रहे होते कि वो खुद अपने आप को उन्होंने एक हैबिट में कैद कर लिया है। अच्छा, हैबिट ब्रेकिंग पे कितनी किताबें हैं, राइट? द एटॉमिक हैबिट जब सबसे ज़्यादा मशहूर तो किताब एक है, फिर कॉलर हमारे साथ शामिल हैं इरम, उनकी कॉल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। जी, बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है। सिर्फ़ एक पॉइंट है कि अ, बावजूद इसके बावजूद इसके कि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए मतलब कि अच्छी नहीं है। हमारे आदतों को ख़राब कर रही है, हमारे बुरा असर डाल रही है, इसके बावजूद हम उसके साथ चिपके रहते हैं। तो ये वो चीज़ जो है, हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए कंट्रोल करना चाहिए और तरीके इख्तियार करने चाहिए कि कैसे उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाला जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और नाज़रीन, अभी हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि हम यहाँ पर इमोशनल एडिक्शन पर बात कर रहे हैं, इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, जज़्बात कैसे बनते हैं, जज़्बात को समझना, जानना क्यों ज़रूरी है। अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो खुद ब खुद हल होते चले जाएँगे। हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा टाइम निकालें, जिस तरह हम दूसरों के लिए वक़्त निकालते हैं, जिस तरह दूसरों को टाइम देते हैं, इस तरह अपने आप को वक़्त देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएँगे और फिर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बात की जा रही है इमोशंस के ऊपर, इमोशनल एडिक्शन के ऊपर, और इस पर कि किस तरह से हम खुद अपने आप को जानें। एक बात ये है कि चूँकि हम अपने जो इमोशंस होते हैं उनके साथ ही हम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, हमसे अलग कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको देख कर, पकड़ कर हम रोक सकें, इसलिए बहुत दफ़ा हमें अवेयरनेस नहीं होती। और इसी तरह से बात ये भी है कि अगर हम काम करना चाहते हैं अपने इमोशंस के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर, तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम इनको ऑब्ज़र्व भी करें, इनके बारे में जानें, इनके बारे में आगाही लें। और जब किसी चीज़ से इंसान आगाह होता है, किसी चीज़ के बारे में जानता है, तो फिर जब ही वो उसके ऊपर काम भी कर सकता है। जब तक बेखबरी होती है, लाइल्मी होती है, जब तक हम किसी चीज़ से को जानते और मानते नहीं हैं, तब तक इसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बहुत सी बातें की जाती हैं अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए, अपने रवैयों को बेहतर बनाने के लिए, तो हमेशा यही बात आती है कि कुछ वक़्त निकालें और ख़ुद अपने आप को जानें। कैसे अपने आप को जानें? और वो इमोशंस जिनके हम एडिक्ट हो जाते हैं, जिनके हम आदी हो जाते हैं, और उन आदत की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, बहुत सारे असरात मुरतब हो रहे होते हैं, उन पर कैसे काम किया जाए, उनको कैसे चेंज किया जाए। इरम हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, मैं आपसे ही ये पूछना चाहूँगी कि जब कोई इस बात पे परेशान हो और चाहे कि वो अपने इमोशनल एडिक्शन को ब्रेक करे, तो आपके ख़्याल में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो उसके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल हैं? उसके लिए बेसिकली जो करने की ज़रूरत है वो है एक्टिवली अपने आप को अम, आमादा करना, वो स्टेप्स लेने के लिए जो शुरू में चैलेंजिंग होंगे लेकिन बाद में आसान हो जाएँगे। अब हुँ, ये जो मैंने बात की है वो बेसिकली हैबिट बिल्डिंग है। आम लफ्ज़ों में हैबिट बिल्डिंग या हैबिट ब्रेकिंग है। कहने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल है। कुछ लोग जो हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो अपने आप को सेल्फ सूद ईज़िली कर सकते हैं, या जिनका जो अम नर्वस सिस्टम है उनको रेगुलेट करना आ जाता है थ्रू ब्रीदिंग हुँ, एक्सरसाइज, थ्रू हेल्थियर डाइट, थ्रू वॉक्स, थ्रू पॉजिटिव हॉबीज। अगर किसी ने अपने लिए पैदा कर ली हैं, एक लूप बना लिया हुआ है सर्टेन न्यू हैबिट्स का, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पीड अप हो जाता है ये बिल्कुल। प्रोसेस। इरम, मैं आपसे ये इस बात से मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे को हम जैसे स्क्रीन का एडिक्ट बना देते हैं। उसको हमने बिठाया, या हम उसको, कुछ होती हैं ना माएँ जो बच्चों को थोड़ी-सी चीनी दे देती हैं, शुगर दे देती हैं उनको कि ये खा लो, और बच्चे आदी हो जाते हैं कि वो उसी तरह से रोना बंद करें कि बस उनको थोड़ी-सी शुगर मिल जाए और उसके बाद वो खामोश हो जाएँ। तो इसी तरह मैं आसान अल्फाज में ये कहूँगी कि हमारा ब्रेन भी एक बच्चे की तरह है ना, जिसको बहुत सारे पैटर्न्स की आदत पड़ गई है और वो उसी तरीके से चलता चला जा रहा है। तो जब भी हम जैसे बच्चे की आदत चेंज करते हैं, तो बच्चा रेज़िस्ट करता है। बच्चा जो है सही वो है। उस पर पसंद नहीं करता उसको, कि आप क्यों उसको उसके कम्फर्ट ज़ोन से निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से जब भी हम रीवायरिंग करेंगे, तो हमारा ब्रेन भी रेज़िस्ट करेगा। और शायद यही बात है कि इतना आसान नहीं होता चेंज सही होना ना। इसीलिए जब भी मैं हैबिट्स के बारे में पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि आज बड़ा अच्छा-सा लेक्चर सुना है कि हैबिट्स चेंज करें, और कल से हम जो है ना वो जोश में आके हैबिट चेंज करने लगते हैं, और तीसरे दिन जो है हम कहते हैं नहीं, अब हैबिट चेंज नहीं होती, नहीं हो रही, तो हम इसको छोड़ दें। हालाँकि उसके लिए कितनी रिसर्च मौजूद है कि हैबिट्स चेंज करने के लिए भी कितने दिन लगते हैं। तो मैं यही चाहूँगी आपसे पूछना और लोगों को आपसे सुनवाना कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बेशक, बिल्कुल। अम, इसमें मैं यही ऐड कर सकती हूँ कि पेशेंस, परसेवरेंस और रेजिस्टेंस टू फॉलिंग बैक टू पैटर्न। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, इंसान का दिमाग भी हर वक्त बोल रहा होता है, राइट? और हुँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं जब हेल्थियर पैटर्न्स की तरफ जाना लगते हैं, राइट? डाइट होती है, 5 दिन बड़ी अच्छी जाती है, छठे दिन जो होता है वो कोई ना कोई डंडी मार जाते हैं, तो फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ लोग जो होते हैं वो लोथ करते हैं या शेम करते हैं अपने आप हुँ, को। जब आप इमोशनल एडिक्शन की बात कर रहे हो, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो यही होता है कि इंसान अपने आप को लान-तान करना शुरू कर देता है। आपने अपने आप को उस वक़्त कंपैशन देना है। आपने अपने आप को उस वक़्त हुँ, कहना है कोई बात नहीं है। आपने अपने आप को कहना है कि ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, गो बैक टू दैट रूटीन। आप, जैसे मैंने बताया कि साइंस अब बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको ये बता रही है कि अगर आप कोई न्यूरो पाथवे नया बनाना चाहो,
تو ہم بنا سکتے ہیں. یہ امپاسبل بات نہیں ہے. دیر از نو ڈوم کہ ختم ہو گیا بس بھائی اب زندگی ختم ہو گیا, کچھ نہیں ہو سکتا, بس اس عادت میں پڑ گئے, اس مصیبت میں پڑ گئے تو اب اس سے نکل نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے, ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد کرے. آپ کا بلیف سسٹم ہو, آپ کا سراؤنڈنگ سرکل پازیٹیو ہو, یا آپ وہ پازیٹیو سرکل آن لائن ڈھونڈ لو. بعض اوقات لوگ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو فزیکلی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کی جرنی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں, ایمپتھی نہیں ہوتی, کریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر آپ آن لائن گروپس ڈھونڈ لو, رائٹ, which know and understand your struggle so that you can be kept accountable. Accountability جو ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا ارم, آپ کی بات سے ایک بات میں لوں گی کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں ہر ایک کی جو جرنی ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمیں خود کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو سفر ہے, ہماری جو جرنی ہے, ہم جن چیزوں کے اوپر خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ہم جن مسائل کو اپنے حل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہر ایک اس کو نہیں سمجھ پائے گا نا. ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ اینگل سے اس بات کو لے رہا ہو, اس بات کو سمجھ رہا ہو, اور اس کی نزدیک آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ بالکل مختلف ہو, اور ہم جس طرح سے اپنی بات کو, اپنے ایشو کو لے رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کی زندگی میں اگر کسی ایک ریزن سے چینج آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اسی ریزن کی وجہ سے چینج نہ آ سکے, آپ کو کچھ اور ڈفرینٹ طریقہ آزمانا پڑے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی ارم, کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہر بندہ مختلف ہے, ہر بندے کے فار ایگزامپل چلیں جی ہم یہ واٹس ایپ جڑی بوٹیوں کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وزن کم کرنے کا طریقہ, جی صبح اٹھو اور لیمن پیو شہد کے ساتھ تو وزن کم ہو جائے گا. کچھ کہتے ہیں جی ایپل سائڈر پیو تو پھر کم ہو جائے گا. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ تخم لنگا جو ہے وہ پینے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہر بندے کی باڈی ڈفرینٹ ہے, اس کا لائک یو نو یور گٹ از ڈفرینٹ. کچھ چیزیں ہیلتھی ہیں یس, بٹ ہر چیز ایک ٹیبل اسپون منہ میں ڈالو گے تو فرق پڑ جائے گا نہیں. آپ ہر بندے کا باڈی, اس کا بلڈ سسٹم, اس کا نروس سسٹم, نیوٹریشن سسٹم سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو مے بی اٹس دا سیم تھنگ بٹ دا کوانٹٹی از ڈفرینٹ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور نیڈز بھی نا, جیسے میں کہیں یہ بات میں نے سنی اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ کا ہر ایج میں آپ مختلف ادوار سے گزرتے ہو اپنی زندگی کے اندر, تو ہر ایج میں آپ کی ایموشنل نیڈس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک چھوٹا سا جو بچہ ہے وہ اس کی ضروریات مختلف ہیں. اس کے بعد جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے, ٹین ایج میں آتا ہے, تو نیڈز اس کی ڈفرینٹ ہیں, ایموشنل نیڈز. اور اسی طرح آپ یعنی آپ کا جو بھی فیز ہے, آپ اپنی شادی میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی ایموشنل نیڈز ڈفرینٹ ہیں, شادی کے بعد ڈفرینٹ ہیں, ماں بننے سے پہلے, ماں بننے کے بعد. اسی طرح سے آپ کی بڑھاپے میں ایموشنل نیڈز بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس وقت یعنی ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کی ایک بات ہمارے دین سے ہمیں بار بار تلقین ملتی ہے, تو اسی لیے کہ جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کے جذبات بالکل مختلف ہوتے ہیں نا. ذرا سی کچھ چیز میں ان کو منع کر دو تو ان کے جذبات کو ٹھیس لگ جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سمجھنا نا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کی ڈفرینٹ ہے, اور ایک انسان کی بھی مختلف ایجز میں ڈفرینٹ ہے, مختلف فیزز میں ڈفرینٹ ہے. جی بالکل, لیکن کسی اور کے سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاسٹ کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پاسٹ میں میرا یہ پوائنٹ تھا, یہاں پہ I think I was in my best shape, my best health, my best attitude, life was good at that point, I need to go back to that point. یہ بھی ایک ایموشنل ایڈکشن کا لوپ ہے جو لوگ نہیں توڑ پاتے. The thing is past کسی وجہ سے past میں رہ گیا ہے. ہماری زندگی کا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ کار ہمیں سمجھایا ہے قرآن اور سنت کے مطابق, وہ یہ ہے کہ احسان کی زندگی گزار, مطلب احسن طریقے سے بڑھتے جاؤ. وہ کہتے نہیں ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کسی اور کے ساتھ نہیں, آپ کا کمپٹیشن اپنے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے کسی اور کی طرح نہیں بننا, آپ نے اپنا ہی بیسٹ ورژن بننا ہے, رائٹ. سو ایک ایموشنل لوپ جس کو ہم اگر سمجھیں کہ اگر آپ 25 میں 50 kgs تھیں اور آپ کا سائز اسمال تھا, تو اب ایٹ 55 دیٹ از ناٹ پاسبل, biologically that's not possible. تو جو keep expecting to go back to that is again an emotional addiction cycle, because you are self-loathing کہ مطلب میرے اندر کوئی خرابی ہے. نہیں, انسان
ग्रो कर रहा है इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। एंड सो आपकी बात को ही रिट्रेट करते हुए अपनी जिंदगी के सीजन को समझें और उस सीजन के मुताबिक अपने आप की इमोशनल नीड्स को नर्चर करें। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही ना, कि अपने ज़िंदगी का जो आपका सीज़न है या जो आपका जो भी फेज़ है, आपका जो रोल है, आप इस वक़्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हर वक़्त जब आप वापस जाके कंपैरिज़न करते रहते हैं, अपने लिए इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, अब क्यों करने लगा हूँ? तो हालाँकि गुंजाइश तो हमेशा रहती है, अगर आप एक अच्छे पर्सन थे और आप बहुत ज़्यादा अब किसी गलत आदत की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, आप ज़रूर इस चीज़ को रिव्यू करें और देखें कि अच्छा मेरी आदत पहले अच्छी थी, क्यों आदत बिगड़ी हैं? लेकिन इसके साथ-साथ वक़्त भी तब्दील हो रहा होता है ना, आपके हालात भी हाँ। तब्दील हो रहे होते हैं, तो हर वक़्त खुद को क्रिटिसाइज़ करना अ, अच्छी चीज़ नहीं है, हर वक़्त खुद पे तनक़ीद करना, हर वक़्त खुद को ब्लेम करते रहना, बल्कि इस चीज़ को जानना और समझना कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, इस वक़्त मैं कहाँ पर हाँ। खड़ा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और आप इरम कैसे हमें समझाना चाहेंगी कि इस चेन को ब्रेक करना, अपनी इस एडिक्शन को, क्योंकि हर एडिक्शन जो होती है ना, वो देखें, हर एडिक्शन में नाम ना भी लूँ तो जितने भी हमारे दिमाग में आते हैं, उनसे कहीं न कोई ऐसा इम्पैक्ट हो रहा होता है, कोई ऐसा नुकसान हो रहा होता है जिसका हमें नज़र आ रहा होता है ना? तो लेकिन ये कि इमोशनल एडिक्शन जो है ना, इसका नुकसान हमें अमूमन उस तरह से नज़र नहीं आ पा रहा होता है, क्योंकि हम इतने आदी हो गए ना अपने इमोशंस के साथ-साथ चलने के, कि अलग से इनको करके नहीं देख रहे होते। तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है फिर अपने इस एडिक्शन की चेन को ब्रेक करने का? सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज की जाए। अपने आप को लान-तान करने की बजाय या अपने आप को विक्टिम समझने की बजाय अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हम करें, कि बोलें, मैं क्या करती हूँ? मैं क्यों करती हूँ? मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ? मैं कैसे बेहतर रिएक्ट कर सकती थी? मैं इस चीज़ को, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इमोशनल ईटिंग है, मुझे डिस्ट्रेस हुआ और फिर मैंने जी इमोशनल ईटिंग शुरू कर दी। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने इतनी सारी इमोशनल ईटिंग की है, तो फिर उसके बाद मेरी सेहत पे अगले दिन क्या असर होने वाला है। तो वो हाथ बढ़ाने से पहले या उस वापस लूप में जाने से पहले पानी के 2 ग्लास पी लो, या कॉन्शियसली अपने आप को बोलो, तुम क्या करने लगी हो? तुम क्यों करने लगी हो? इसका तुम्हें इफ़ेक्ट क्या होगा? बाद में तुम क्या महसूस करोगी? जिसको आप मुहासबा भी कहते हो, जिसको आप कहते हो कि आप अपने आप से बात करते हो, क्योंकि फिर आप अपने ब्रेन पाथवे को, जो उस वक़्त क्रेव कर रहा होता है कुछ, आप उसको स्टॉप करके डाइवर्ट करते हो, राइट? और ये हमने खुद करना है, ये किसी ने हमारे लिए नहीं करना है। तो हुँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, मैंने कोई 3-4 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए हैं आज, कि अपने अपने साथ अ, हमदर्दी रखें। हुँ, अपने आप को इंसान अशरफुल मखलूक़ात समझते हुए, जाने इस बात को कि आपसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी किताब में, राइट लेफ्ट जो हुँ, किताबें लिखी जा रही हैं। तो अगर हमने अपने आप को बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम हाज़िर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बुक ऑफ डीड्स ग्रो, तो सबसे पहले हमें खुद ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अपने आप के साथ एहसान करना पड़ेगा, अपनी ज़ात के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी और अपने आप को फ़ॉरगिव करना होएगा। हुँ, इमोशनल एडिक्शन शुरू ही इसलिए होती है कि वी आर शेमिंग आवरसेल्व्स और वी आर अनफॉरगिविंग ऑफ आवरसेल्व्स, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमें ये लगता है कि वो एक रिकरिंग थीम हो गई है हमारी लाइफ की, और हर चीज़ को हम उस एक्सपीरियंस से जोड़ के अपने अंदर की एंग्जायटी, अपने अंदर की कैटास्ट्रोफाइजिंग, या अपने अंदर का जो एक बेचैनी होती है, मैंने देखा है खवान, मेरे अंदर भी शायद होगी, किसी ने मुझे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जब अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ, तो वो बड़ी रिसेंटली थी, उन्होंने हुँ, ना मुझे चूँकि 10 सवाल उन्होंने मुझे भेज दिए। अब मैं उनकी कोच हूँ, राइट? जो उन्होंने सवाल भेजे, पहले तो मुझे हँसी आई, फिर मुझे थोड़ा-सा वो भी हुआ कि यार अल्लाह की बंदी, देन आई टोल्ड हर, ये जो बेचैनी, इज़्तिराब है, हुँ, दैट इज़ आल्सो एन इमोशनल एडिक्शन। व्हेन यू थिंक दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, इसलिए आप कोई वरी अपने ऊपर लाद लो, दैट्स एन हुँ। एडिक्शन। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और उससे मैं ये बात, मेरा ज़हन इस तरफ गया, पता नहीं ये रेलेवेंट होगी बात या नहीं, कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा होता है ज़िंदगी के अंदर, कोई आपको कोई वरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और इसीलिए ये है कि जब आप मुश्किल में हो तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब आसानी में हो तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जब हम आसानी में होते हैं ना, कहीं और कोई टेंशन हमें नहीं नज़र आ रही होती, तो हम फिर खुद साख्ता चीज़ों के ऊपर परेशान होना शुरू कर देते हैं, बजाय हुँ, हम शुक्र बिल्कुल। अदा करने के, क्योंकि
उस टाइम पर हमारा दिमाग यही चल रहा होता है ना, दिमाग को कहते हैं खाली दिमाग जो है वो शैतान का खाना होता है, तो दिमाग में हम उल्टे-सीधे ख़यालात हमारे आने लगते हैं और हम फिर सारा फ़ोकस उन्हीं के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। आपकी कंपनी भी बहुत मैटर करती है। मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज लेकर आ सके हैं, हुँ, वो लोग उन्होंने अपनी कंपनियाँ चेंज की हैं, अपने आप को चेंज करते हुए, अपने एडिक्शन साइकिल्स में से निकलते इमोशनल एडिक्शन साइकिल्स में से निकलने के लिए बड़ा ज़रूरी है। हम इंसानों की बॉन्डिंग होती है, एक होता है ट्रॉमा बॉन्ड, एक ट्रॉमा बॉन्ड का भी एडिक्शन होता है। किसी इंसान के साथ रहना भी मुश्किल है और उसके बगैर भी नहीं हम रह सकते, हुँ, राइट? वो भी एक टाइप ऑफ एडिक्शन है, राइट? वो भी एक रिलेशनशिप में एक कोडिपेंडेंसी फॉर्म हो जाती है। तो जब हम स्पेशली हमारी दोस्तियां अगर इतनी कोडिपेंडेंट हैं कि हम एक इमोशनल एडिक्शन, एंजाइटी और इमोशनल एडिक्शन के ये अक्सर आपने सुना नहीं है, अगर एक शख्स ने आके बताया कि मैं परेशान हूं, तो दूसरा बजाय से कि उसके साथ एम्पैथाइज करे, उसको बताना शुरू कर देता है कि नहीं, तुम तो थोड़े परेशान हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। या आप हाँ, किसी के पास तीमारदारी करने चाहो और आपके पास 4 लोग बैठे हैं, तो वो 4 लोग जो है उस बीमार को नहीं पूछ रहे, पूछ लिया, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? अच्छा, अल्लाह मियाँ आपको शिफा दे। उसके बाद बताते हैं कि जब उनका ऑपरेशन हुआ था, तो क्या-क्या सानहे हुँ, वाक़ये किस्से हुए, लाइक व्हाट्स हाँ, हैपनिंग हाँ। देयर, राइट? जी, अच्छा सो इरम इससे मैं ये समझ रही हूँ, कि सब्सटेंस एडिक्शन है, कोई आपको ऐसी किसी नशे की आदत हो गई जिससे आप नहीं बच पा रहे, तो जो लोग सेहतमंद होते हैं ना आपके इर्द-गिर्द, वही आपको आपको खींच के आपको जो है ना उस सूरत-ए-हाल से निकाल यस, सकते हैं, या कोई प्रोफ़ेशनल हो जिसके यस, पास आप जाके हेल्प लें। हाँ, लेकिन अगर आपके ही जैसे लोग आपके इर्द-गिर्द मौजूद होंगे जो हाँ, खुद एडिक्ट है किसी चीज़ के, तो फिर वो आपको हाँ, निकाल नहीं सकते। बल्कि ये कि वो हाँ। शायद आपकी वो एडिक्शन मज़ीद बढ़ा दें, आप मज़ीद बीमारी की तरफ अ, चले जाएँ। तो आप बिल्कुल हाँ, इसी आपकी तरह से। नर्वसनेस बढ़ा देते हैं, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ा देते हैं। कई दफ़ा कोई दोस्त बज़ाहिर हमारा दोस्त होता है, पर यार उसकी मौजूदगी हमें बोझिल कर देती है। यू डोंट फील रिफ्रेश्ड आफ्टर दे लीव, यू फील ड्रेन्ड आफ्टर दे लीव। तो क्या वो शख्स बुरा है? नहीं, उस शख्स की नेगेटिविटी आपकी आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए मुश्किल होती जा रही है। और वहाँ पे फिर आपको ये डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि आई एम गोइंग टू स्टेप बैक अ बिट, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिस्टेंस अ बिट। मुझे हुँ, नहीं ये इस साइकिल में रहना, मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। यही बात जो इरम कर रही हैं, इसमें मैं इज़ाफ़ा करना चाहूँगी कि इमोशनल एडिक्शन में ना उस वक़्त बहुत से ऐसे लोग, ऐसी कंपनी बहुत काम आती है, ऐसे साथी, ऐसे दोस्त या ऐसे जो भी आपके सपोर्टर्स हैं, कि जो खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों और जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो ना, जो आपका जो जर्नी है, जिस तरह जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकें और वो आपको फिर इस चेन को, इस एडिक्शन को ब्रेक करने में हेल्प कर सकें। कोई मतलब अमली तौर पे कोई हेल्प कर सकें या आपको सुन सकें, या हो सकता है कि वो कुछ ऐसे आपको सजेशंस दे सकें कि जिनसे आप बेहतर महसूस करें। इरम और क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो आपने सेल्फ अवेयरनेस कही, इसी तरह आपने कहा कि कंपनी बहुत मैटर करती है। और क्या चीज़ें होंगी कि इंसान खुद अपनी तरबियत करे? अच्छा, लोगों को आमतौर पर लोगों की एडिक्शन होती है, ठीक है? तो आपको पता चला कि जी कोई आपके लिए नेगेटिव है, तो आपने जी उनसे बैक ऑफ किया, लेकिन कोई आपको लगा कि बहुत पॉजिटिव है, तो आप उसके साथ ही रहना शुरू हो गए। सो रिकॉग्नाइज़, आर यू रिपीटिंग हाँ। द सेम साइकिल? हुँ, हुँ। अपने साइकिल को रिकॉग्नाइज़ करो, अपने लूप फॉल को रिकॉग्नाइज़ करो, और ये आप सिर्फ़ ऐसे बैठ के सोच के नहीं रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, जर्नलिंग करो, लिखो कहीं पे, नोट्स लो, कहीं पे बैठ के, या फिर जिसको कहते हैं वॉक्स पे जाते हुए सोचो, अपने आप से सवाल करो। क्योंकि जो ब्रेन है, जब आप उसका पाथवे चेंज कर रहे होते हैं, तो वो एकदम से नहीं होगा, ऐसा हुँ, नहीं होगा। कई महीने, बाज़ औक़ात कई साल लगते हैं, कई हुँ, साल लगते हैं। तो अपने आप को वो गुंजाइश दें। सेल्फ सूदिंग एक्सरसाइजेज़ जिसको कहते हैं, कुरान की रेसिटेशन करना, तस्बीह करना, नेचर में रहना, कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज़, किसी किस्म की हॉबी, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपके ब्रेन को अम, डाइवर्ट करने में। हुँ, क्योंकि आप हुँ, हिम्मत लूज़ करने लगते हो ना, आप फ़ील होने लगता है बहुत बोझिल है। ये पता है ऐसे है जैसे कि एक बोझ उठाया हुआ है, जी। बड़े अरसे तक एक बोझ उठाया हुआ है, ठीक है? अब वो आपने ना वो बोझ उठा के साइड पे रख दिया, तो अब आपको ना खाली-खाली फ़ील हो रहा है। जब हम ट्रैवल हुँ, करते हैं तो कितने भारी-भारी बैग हमने, जब हम तो हमें थोड़ी देर बाद लगता है मेरे कोई सामान गुम तो नहीं हो गया, कुछ गुम तो नहीं हो गया?
राइट? हाँ, एग्जैक्टली योर ब्रेन इज लाइक कुछ गुम हो गया यार, तुम उस तरह से डिप्रेस नहीं हो जैसे तुम पहले थे, कुछ गुम हो गया। सो यू हैव टू टेल आई एम नॉट गोइंग टू कैरी दैट बर्डन एनीमोर, हाँ, ये वो हाँ, खत्म हो इसी गई है चीज, जी, राइट? इरम बट इसी टू से मुझे एक डाइवर्ट बात याद योरसेल्फ। आई कि शायद मैं इसको सही समझ रही हूँ या आई डोंट नो इसको सही समझ रही हूँ या नहीं समझ रही। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि वो यानी अपनी जो खुशी होती है ना वो लोगों से मिलने में ही तलाश करने लगते हैं कि अगर हम बहुत सारी महफ़िल में नहीं होंगे या बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे तो फिर वो खुश नहीं हो रहे होते। ठीक है? और कोई ऐसा फ़ेज़ आता है उनकी लाइफ़ में जैसे वो मूव हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप भी मूव हुई हैं, मैं भी मूव हुई हूँ और आपके पास वो कंपनी नहीं है। अब आप जो हैं वो बार-बार, बार-बार, बार-बार अपने आप को ये कह रहे हैं कि नहीं जब तक वही कंपनी नहीं मिलेगी जब तक मैं खुशी नहीं महसूस कर सकता। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है ना वो उस सोशलाइज़ेशन पर हो जाएगी, कि जब तक वो ही सोशल सिचुएशन नहीं होगी, वैसे लोग इर्द-गिर्द नहीं होंगे जब तक मैं नहीं होगा और आप ये नहीं सोच रहे कि इसका कोई अल्टरनेट भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो मुझे मुझे ये पता है कि सोशलाइज़ेशन एग्ज़ॉस्ट्स मी, तो मेरे हुँ, आई डोंट मिस कंपनी एट ऑल। मैं खुद ही लेकिन हाँ, ये बात है। मैं देयर देयर वाज़ वन्स अपॉन अ टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि मेरी कंप्लीशन जो है ना, वो इस चीज़ में है कि मैं होस्ट करती रहूँ, जाती रहूँ, हुँ, बात करती रहूँ, कोई ना कोई होना चाहिए। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चला कि दैट ड्रेन्स माय एनर्जी इवन मोर। इट ड्रेन्स माय एनर्जी, इट स्टॉप्स माय ग्रोथ, इट स्टॉप्स माय हुँ, ग्रोथ, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपना मुहासबा करने के लिए खामोशी का होना ज़रूरी है। वो खामोशी हुँ, क्रिएट करोगे अपने लिए एज़ अ गुड हैबिट, अपने आप को ब्रेक देंगे आप लोगों से, तो आप अपने ऊपर काम कर सकेंगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल, यही बात है इरम और इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं कि दिल चाह रहा है कि आज का ये डिस्कशन हमारा इसी तरह चलता चला जाए। लेकिन ना अपने आप से मैं कहती हूँ कि खामोशी जब होती है ना तभी मुमकिन होता है कि आप अपने आप से टॉक कर सकें। वरना मुझे लगता है कि लोगों के हुजूम में और बहुत ज़्यादा जैसे आपने कहा कि आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं और आप उन पे ही डिपेंडेंट हैं खुशी के लिए, तो अपने आप से बात करने का मौका नहीं आ पाता, है ना? तो बल्कि मैं कहती हूँ कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, तो अमूमन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ वन टू वन कर सकें। और बाद में आपको फ़ील होता है कि अच्छा बड़ा नेग्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह अपना आप भी नेग्लेक्ट होता जाता है ना, अपने आप को भी हम भूलते चले जाते हैं। जब हम बहुत शोर है, बहुत मसरूफ़ियात हैं, कोई वक़्त ऐसा नहीं है कि जो 2 लम्हे बैठकर हम अपने ऊपर गौर कर सकें। हमें हमेशा एक के बाद एक और दूसरे के बाद दूसरी चीज़ करनी है। तो ये सब चीज़ों में ना अपना आप भी नेग्लेक्ट होता है और हम कहीं पीछे रह जाते हैं ना। हम बातचीत तो बहुत कर रहे हाँ, होते हैं, मसरूफ़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अब मैं देखूँ बहुत से लोगों से बातचीत करूँ तो वो ये कहते हैं कि अच्छा हम इस घंटे में ये करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद ये करें, फिर फलाँ दिन फलाँ से मिलें। यानी मैं अमूमन ये सोचती हूँ कि इतने ज़्यादा मसरूफ़ रूटीन में क्या अपना हक नहीं है कि हम अपने आप से भी बातचीत करें, खुद अपने आप को भी कुछ वक़्त दें, कुछ अपनी इमोशनल ग्रोथ के ऊपर भी काम करें? बिल्कुल है। बाज़ औक़ात ना लोग भागते हैं अपने आप से। ये भी एक हुँ, इमोशनल एडिक्शन है। व्हेन यू लूज़ योरसेल्फ, जब लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, तो अपनी आवाज़ सुनने से या अपने अंदर के जो इंट्यूशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर एक फ़ितरी सलाहियत पैदा की हुई है कि जो हमारा अपने आप हमें बता रहा होता है कि भई तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हम उससे भाग रहे थे बिकॉज़ इट इज़ ऑलवेज़ डिस्कम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। ये बात फैक्ट है। कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई अच्छा चेंज लाना है और इस वक्त में आप सैटिस्फाइड नहीं हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो भी आपने गोल सेट किया है, इट्स एन अनकंफर्टेबल पैथ। इजी, आसान हुँ, और आरामदेह तो चेंज कभी होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। ये एक इल्यूजन है, मिथ है। हर चीज जब चेंज होती है तो उसमें फ्रिक्शन भी होती है, उसमें रेजिस्टेंस भी होती है, और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हुँ, मेहनत से हम घबराते हैं और समझते हैं कि अभी इसी वक़्त डायरेक्ट अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इट्स अ वेरी स्लो, वेरी, वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट्स ओके एज़ लॉन्ग एज़ यू आर मूविंग। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने इरम और आज की जो गुफ्तगू है हमारी बहुत मज़े की है और चूँकि आपसे अब कुछ दोस्ती हो गई है तो मैं जानती हूँ कि हम दोनों ही ये चाह रहे हैं इस वक़्त कि ये डिस्कशन हमारा चलता चला जाए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि हम करें और आज के लिए मुझे लगता है लेकिन इतना ही काफ़ी है। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं और जो लोग भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको हमारी इस गुफ्तगू से दिलचस्पी पैदा हुई है या अपने अंदर वो चेंज लाना चाहते हैं तो इरम उनके लिए आप
آپ کا لاسٹ میسج کیا ہے؟ لاسٹ میرا میسج یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹرنس کو نوٹس کریں. آپ اپنا اس ایموشنل ایڈکشن کے بارے میں ریڈ اپ کریں، سرچ کریں، فائنڈ آؤٹ کریں، کوئی اچھی کتاب، کوئی اچھا پوڈ کاسٹ سنیں اس بارے میں، اور اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. بالکل، اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف، یہ ایک آج کا امپورٹنٹ میسج ہے ناظرین جو ہم نے یہاں پر پوری بات کی ہے. اور سب سے جو اہم بات میں نے اپنے لیے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی چینج ہم لے کر آنا چاہتے ہیں تو ریزسٹنس ہوتی ہے ہمارے اپنے ہی اندر سے، جو ہے نا ہمیں یہ آواز آتی ہے کہ نہیں اٹس ناٹ پاسبل، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اپنے اسی کمفرٹ زون میں رہیں، انہی عادات کے ایڈکٹ بنے رہیں. لیکن اس چینج سے گھبرا کر اگر ہم اس وقت بیٹھ گئے تو پھر ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے. ایک سلو پروسیس ہے، اور جب انسان آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے تبھی وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب کسی مقابلے میں ہوتے ہیں، جب کسی دوڑ کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ہانپنا شروع کر دیتے ہیں، یا تھک جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم سلولی اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اپنے اندر جو چینج ہم لانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آہستہ آہستہ کوششیں کرتے ہوئے بہتری لے کر آتے جائیں، تو ہم یقیناً اپنا جو ہمارا ڈیزائرڈ رزلٹ ہے، جو ہم چاہتے ہیں، مطلوب جو چیز ہمیں ہے، اس تک ہم ضرور پہنچ سکتے ہیں. اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ سے ہمدردی بھی رکھیں، اپنے آپ سے محبت بھی رکھیں. ہر وقت خود پہ کرٹیکل نہ بنے رہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں، آپ خود غلط ہیں. آپ غلط نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے آپ کا براٹ اپ ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے آپ کی سوچ کا ایک انداز بنا دیا. تو ہمارا آج کا یہ میسج ہے کہ اپنے ایموشنز کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اوپر غور کریں. ہمارے ساتھ شامل رہیں، ہر ہفتے ہم شام کے ساتھ شامل ہوں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.